बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, देसी उर्दू टीवी की खुसूसी रिपोर्ट के साथ मैं हूँ शुमाइला चौधरी। ह्यूस्टन फंड रेजिंग गाला में यमुना जैदी का पुरजोश खिताब, उम्मीद, तालीम और ख़वातीन के हुकूक़ का पैगाम। ह्यूस्टन में मुनक़िदा फंड रेजिंग गाला में मारूफ अदाकारा और समाजी शख्सियत यमुना जैदी ने कलीदी खिताब किया, जिसने हाज़रीन के दिल जीत लिए। यमुना जैदी ने अपने खिताब में पाकिस्तान के मुख्तलिफ महरूम तबकात की फौरी और देरपा ज़रूरियात पर रोशनी डाली और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इन मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करने की दावत दी। अपने जज्बाती खिताब में उन्होंने ख़ास तौर पर तालीम की अहमियत, कुदरती आफात में फ़ौरी इमदाद और ख़वातीन की खुद मुख्तारी पर ज़ोर दिया। यमुना ने कहा कि तालीम न सिर्फ फ़र्द की ज़िंदगी बदल सकती है बल्कि ये माशरे की तरक्की की बुनियाद भी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी ख़वातीन और बच्चों की ज़िंदगी आज भी मुश्किलात से दो चार है, जिन्हें फ़ौरी तवज्जो की ज़रूरत है। यमुना जैदी ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्यूनिटी से अपील की कि वो माली इमदाद के ज़रिए इन अहम मंसूबों को आगे बढ़ाएं ताकि पाकिस्तान में देरपा तब्दीली लाई जा सके। उनका कहना था कि सिर्फ चंद अफराद की मदद से लाखों ज़िंदगियां बदल सकती हैं। तकरीब में उनकी मौजूदगी ने न सिर्फ सितारा की रोशनी बख्शी बल्कि एक मुखलिस और संजीदा अंदाज में इंसानियत की खिदमत का जज्बा भी जगाया। हाज़रीन ने उनके पैगाम को भरपूर पजीराई दी और वादा किया कि वो उस मुहिम का हिस्सा बनेंगे। ये फ़ंड रेजिंग गाला पाकिस्तान में सेहत, तालीम और ख़वातीन के हुकूक़ के फ़रोग़ के लिए अहम इक़दाम करने वाली तंजीम मुस्लिम एड USA की जानिब से मुनक़्क़िद किया गया था, जिसका मकसद पाकिस्तानी कम्यूनिटी में शऊर बेदार करना और माली ताउन हासिल करना था। Who's ready for our superstar? Yumna Zaidi. She is not just a household name in Pakistan, she is an icon of integrity, emotion, and purpose. With numerous award-winning performances in dramas, she has captivated hearts with her powerful performances of women's stories. But beyond her work on screen, she's a true humanitarian. She has used her platform to advocate for the most vulnerable and underserved communities in Pakistan, bringing attention to their struggles and needs. We are deeply honored to have her lead her voice in the presence of this noble cause tonight. Please join me in welcoming Yumna Zaidi. To everyone, thank you Houston, it's an honor. And I'm so happy and I'm so thrilled to see so many of you here tonight to support Muslim Aid USA and its important cause. I feel that we are not just here to support an organization, we are here to support humanity overall. We are here to help someone, somewhere in the world, to get better health care, clean water, shelter, education, emergency services, economic development, orphanage facilities, and much more. Muslim Aid USA has been doing this incredible work from past many years. मुझे जब भी किसी इदारे के साथ मैं मुंसलिक होती हूँ, कनेक्ट होती हूँ, तो आई गेट टू लर्न मोर अबाउट दैट ऑर्गेनाइजेशन। और जब मुस्लिम एड USA के बारे में पढ़ना हुआ, जानना हुआ, तो मुझे बेहद खुशी हुई कि मुस्लिम एड itself is working successfully from past 44 years in UK, and Muslim Aid USA is working greatly, incredibly from past 7 years, and it is one of the most fastest growing Muslim charity organization in America, and it's definitely because of all of you. So thank you so much. इसके साथ साथ if I talk about charity, तो it's a very vital part of our religion, और हमें वैसे ही हम चैरिटी और डोनेशंस और ज़कात के बारे में बहुत कुछ इल्म रखते हैं, और आप लोग तो Yumna Zaidi. She is not just a household name in Pakistan, she is an icon of integrity, emotion, and purpose. With numerous award-winning performances in dramas, she has captivated hearts with her powerful performances of women's stories. But beyond her work on screen,
She's a true humanitarian. She has used her platform to advocate for the most vulnerable and underserved communities in Pakistan, bringing attention to their struggles and needs. We are deeply honored to have her lead her voice in the presence of this noble cause tonight. Please join me in welcoming Yumna Zaid. ये एक बहुत अच्छा साइन है for us being here, Muslim Aid USA being here. So yeah. Well, I first, as a Pakistani woman, I want to thank you for the roles you play and how you represent yourself. थैंक यू सो मच. जैसे मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने ना सब लोगों को किसी ना किसी काम के लिए चूज़ किया हुआ होता है. आप लोग यकीनन हॉल में बैठे हुए आप तमाम लोग अपने किसी न किसी प्रोफेशन में बहुत एक्सपर्ट होंगे. जैसे आज अज़हर अज़ीज़ साहब ने कितने खूबसूरत तरीके से कंडक्ट किया सारा फंड रेज़र. तो अल्लाह ताला ने चूज़ किया होता है. तो बस आई थिंक मुझ गरीब को अल्लाह ने इस मजदूरी के लिए चूज़ किया हुआ था, which I do, which is acting and which I love the most. You've portrayed a wide ranges of complex characters. Which role has challenged you the most emotionally, and why? I feel हर कैरेक्टर जो मैंने अब तक निभाया है उसकी अलग सिग्निफिकेंस है. और मैंने कभी भी कोई कैरेक्टर इसलिए नहीं किया जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी और जस्ट फॉर द सेक कि मुझे काम करना है. मुझे कोई कैरेक्टर्स दिल से पसंद आते हैं तो मैं उन्हें ऑप्ट करती हूँ. तो मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ माई कैरेक्टर्स आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट. लेकिन प्यार के सदके में महाजबीन का कैरेक्टर जो था दैट इज़ आई लव द मोस्ट. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में इतना ज़्यादा तकलीफ़ है और इतना ज़्यादा मुश्किलें हैं और बहुत परेशानियां हैं जो कि यूजुअली हमारे ड्रामाज में भी दिखाई जाती हैं. तो मुझे प्यार के सदका करने के बाद बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स ऐसे मिले जिसमें लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट आई और उनको गुड फील हुआ वो देख के. तो इस वजह से दैट इज़ माई वेरी फेवरेट. तो इमोशनली अगर किसी को वो मेरा कैरेक्टर या ड्रामा एलिवेट करता है तो मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ. You travel back and forth to America quite a bit. What are the differences you've seen with the culture, Pakistani culture here versus going back home to Pakistan? Do you notice a difference in the adjustment for you? How is that adjustment? You want me to answer very honestly? Honestly. We want to know. असल में यहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानी जो सब है ना वो बहुत डिसिप्लिन्ड हैं और दैट इज़ द वेरी वाइटल. जैसे वहाँ प्रोज एंड कॉन्स बहुत हैं. तो मुझे सिर्फ ये होता है कि कल्चर डिफरेंस तो ये है कि ऐसा है कि पाकिस्तान में रहते हुए लोगों को ऐसा लगता है कि दे वांट टू बी मोर मॉडर्न, कि वो कहीं किसी रेस में ज़िंदगी की पीछे ना रह जाएं. तो वो एक मुझे थोड़ा सा ड्रॉबैक लगता है. अपनी रूट्स के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ओवरसीज जो हैं वो ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं. उनको ये डर होता है कि कहीं हम ना कहीं दूर रह जाए पाकिस्तान. इज़ दैट द केस राइट? तो ये मैं काफ़ी नोट करती हूँ. You've had a long, successful career so far. I'm sure you had moments of hardship and struggle that we don't see. What have you learned about yourself through these lessons, through the years that you've been working? I feel कि कोई भी ज़िंदगी का कहीं किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए अगर आप हार्डशिप्स ना देखें तो वो उतनी वर्थ इट ही नहीं होती हैं. तो मैंने अपनी सेल्फ में आई फील कि मेरी पेशेंस बहुत ज़्यादा आया है मेरी पर्सनालिटी में. और सब्र जो है वो एक की पॉइंट है एक इंसान को एक अच्छा बेहतर इंसान बनाने के लिए. इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी सब्र का वर्ड बहुत यूज़ किया है कि सब्र करें, सब्र के साथ मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ. सो आई फील सो गुड कि पेशेंस जो है बाय विद द टाइम जो है वो काफ़ी मैंने गेन किया है इन माई पर्सनैलिटी. कि कुछ बेहतर अल्फाज में आप तक कुछ अच्छी बातें पहुँचा सकूँ. तो एक छोटी सी एक अच्छी बात पढ़ी थी तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूँ. मेरी नानी कहा करती थी
कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम जो है वो किसी दूसरे की जेब से पैसा अपनी जेब में मुंतकिल करना है। और वाकई ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें हमारा बहुत हार्ड वर्क लगता है, हमारी बहुत फिज़िकल एक्सर्शन, बहुत मेंटल एक्सर्शन लगती है और बहुत मेहनत लगती है। तो इस सब के बाद व्हेन वी आर एबल टू अर्न सम मनी और उसका कुछ पोर्शन, चाहे छोटा या बड़ा, हम चैरिटी को देते हैं, तो वी आर एक्चुअली एलिवेटिंग आवर physical and mental exertion to the next level, and we are making it holy and we are making it pure. And this is the best and the beautiful part of our religion, which I believe that it benefits us in many different ways. और अगर जैसे तो आप लोग तो अमेरिका में रहते हैं, हमारे सारे अमेरिकन भाई बहन हमेशा पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो अगर हम सोचते हैं कि अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं, जहाँ पे किसी कस्बे में एक को बच्चा कोई ख्वाब देखता है कि वो एजुकेशन हासिल कर सके और उसके ख्वाब को तकमील, उसकी ताबीर पूरी करने के लिए मुस्लिम एड यूएसए साथ देता है, तो उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है। मी एज समवन हु हैज़ बीन लव्ड बाय मिलियंस थ्रू माय वर्क, I feel that the best way to return that love is supporting an organization like Muslim Aid USA. Or we are honored that we have the CEO of Muslim Aid USA, Azhar Aziz Sahab, with us. और माशाल्लाह इनकी जो speaking power है ये इतनी अच्छी और इतनी ब्यूटीफुल है, इतने खुतबे ये प्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए जो है अल्लाह ताला ने अपने सबसे खूबसूरत काम के लिए अपने सबसे खूबसूरत इंसानों को चुना होता है, एंड ही इज़ वन ऑफ दोज एंड दे आर वर्किंग इनक्रेडिबली ग्रेट। तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ अज़हर अजीज़ साहब को एंड द एंटायर टीम ऑफ मुस्लिम एड यूएसए। और बस ये कहना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला हमारे दिल नरम करता है, जैसे आज आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और मैं उम्मीद करती हूँ और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, एक तो ये कि आप लोगों का यहाँ पे आना ही बहुत ब्लेसिंग है और आप लोग वक्त निकाल के आए, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग जस्ट बी वेरी जेनरस टुनाइट, इवन आफ्टर लीविंग दिस हॉल। कभी भी दिल में ख्याल आए और नरमी पैदा हो तो ज़रूर मुस्लिम एड यूएसए को याद कीजिएगा और जो है वो दिल खोल के चैरिटी कीजिएगा। और बस अपनी जो आपकी रोशनी जो अल्लाह ताला ने आपको दी है, उस खूबसूरत रोशनी से दूसरों को रास्ता दिखाइए ताकि वो लोग अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक बहुत अच्छा साइन है फॉर अस बीइंग हियर, मुस्लिम एड यूएसए बीइंग हियर, सो या। Well, first, as a Pakistani woman, I want to thank you for the roles you play and how you represent yourself. थैंक यू सो मच। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने ना सब लोगों को किसी ना किसी काम के लिए चूज़ किया हुआ होता है। आप लोग यकीनन हॉल में बैठे हुए आप तमाम लोग अपने किसी न किसी प्रोफेशन में बहुत एक्सपर्ट होंगे। जैसे आज अज़हर अजीज़ साहब ने कितनी खूबसूरत तरीके से कंडक्ट किया सारा फंड रेज़र, तो अल्लाह ताला ने चूज़ किया होता है। तो बस आई थिंक मुझ गरीब को अल्लाह ने इस मजदूरी के लिए चूज़ किया हुआ था, which I do, which is acting and which I love the most. You've portrayed a wide ranges of complex characters. Which role has challenged you the most emotionally, and why? I feel हर कैरेक्टर जो मैंने अब तक निभाया है उसकी अलग सिग्निफिकेंस है, और मैंने कभी भी कोई कैरेक्टर इसलिए नहीं किया जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी और जस्ट फॉर द सेक कि मुझे काम करना है। मुझे कोई कैरेक्टर्स दिल से पसंद आते हैं तो मैं उन्हें ऑप्ट करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ माई कैरेक्टर्स आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट, लेकिन प्यार के सदके में महजूबीन का कैरेक्टर जो था दैट इज़ आई लव द मोस्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में
इतना ज़्यादा तकलीफ़ है और इतना ज़्यादा मुश्किलें हैं और बहुत परेशानियां हैं जो कि यूजुअली हमारे ड्रामाज में भी दिखाई जाती हैं। तो मुझे प्यार के सदका करने के बाद बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स ऐसे मिले जिसमें लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट आई और उनको गुड फील हुआ वो देख के। तो इस वजह से दैट इज़ माई वेरी फेवरेट। तो इमोशनली अगर किसी को वो मेरा कैरेक्टर या ड्रामा एलिवेट करता है तो मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ। You travel back and forth to America quite a bit. What are the differences you've seen with the culture, Pakistani culture here versus going back home to Pakistan? Do you notice a difference in the adjustment for you? How is that adjustment? You want me to answer very honestly? Honestly, we want to know. असल में यहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानी जो सब है ना वो बहुत डिसिप्लिन्ड हैं और दैट इज़ द वेरी वाइटल। जैसे वहाँ प्रोज एंड कॉन्स बहुत हैं, तो मुझे सिर्फ ये होता है कि कल्चर डिफरेंस तो ये है कि ऐसा है कि पाकिस्तान में रहते हुए लोगों को ऐसा लगता है कि दे वांट टू बी मोर मॉडर्न, कि वो कहीं किसी रेस में ज़िंदगी की पीछे ना रह जाएं। तो वो एक मुझे थोड़ा सा ड्रॉबैक लगता है। अपनी रूट्स के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ओवरसीज जो हैं वो ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। उनको ये डर होता है कि कहीं हम ना कहीं दूर रह जाए पाकिस्तान। इज़ दैट द केस राइट? तो ये मैं काफ़ी नोट करती हूँ। You've had a long, successful career so far. I'm sure you had moments of hardship and struggle that we don't see. What have you learned about yourself through these lessons, through the years that you've been working? I feel कि कोई भी ज़िंदगी का कहीं किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए अगर आप हार्डशिप्स ना देखें तो वो उतनी वर्थ इट ही नहीं होती हैं। तो मैंने अपनी सेल्फ में आई फील कि मेरी पेशेंस बहुत ज़्यादा आया है मेरी पर्सनालिटी में, और सब्र जो है वो एक की पॉइंट है एक इंसान को एक अच्छा बेहतर इंसान बनाने के लिए। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी सब्र का वर्ड बहुत यूज़ किया है कि सब्र करें, सब्र के साथ मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। सो आई फील सो गुड कि पेशेंस जो है बाय विद द टाइम जो है वो काफ़ी मैंने गेन किया है इन माई पर्सनैलिटी। ये एक बहुत अच्छा साइन है फॉर अस बीइंग हियर, मुस्लिम USA being here. So yeah. Well, as a Pakistani woman, I want to thank you for the roles you play and how you represent yourself. थैंक यू सो मच। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने ना सब लोगों को किसी ना किसी काम के लिए चूज़ किया हुआ होता है। आप लोग यकीनन हॉल में बैठे हुए आप तमाम लोग अपने किसी न किसी प्रोफेशन में बहुत एक्सपर्ट होंगे। जैसे आज अज़हर अज़ीज़ साहब ने कितने खूबसूरत तरीके से कंडक्ट किया सारा फंड रेज़र, तो अल्लाह ताला ने चूज़ किया होता है। तो बस आई थिंक मुझ गरीब को अल्लाह ने इस मजदूरी के लिए चूज़ किया हुआ था, which I do, which is acting and which I love the most. You've portrayed a wide ranges of complex characters. Which role has challenged you the most emotionally, and why? I feel हर कैरेक्टर जो मैंने अब तक निभाया है उसकी अलग सिग्निफिकेंस है, और मैंने कभी भी कोई कैरेक्टर इसलिए नहीं किया जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी और जस्ट फॉर द सेक कि मुझे काम करना है। मुझे कोई कैरेक्टर्स दिल से पसंद आते हैं तो मैं उन्हें ऑप्ट करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ माई कैरेक्टर्स आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट, लेकिन प्यार के सदके में महजबीन का कैरेक्टर जो था दैट इज़ आई लव द मोस्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में इतना ज़्यादा तकलीफ़ है और इतना ज़्यादा मुश्किलें हैं और बहुत परेशानियां हैं जो कि यूजुअली हमारे ड्रामाज में भी दिखाई जाती हैं। तो मुझे प्यार के सदका करने के बाद बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स ऐसे मिले जिसमें लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट आई और उनको गुड फील हुआ वो देख के। तो इस वजह से दैट इज़ माई वेरी फेवरेट। तो इमोशनली अगर किसी को वो मेरा कैरेक्टर या ड्रामा एलिवेट करता है तो मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ।
You travel back and forth to America quite a bit. What are the differences you've seen with the culture, Pakistani culture here versus going back home to Pakistan? Do you notice a difference in the adjustment for you? How was that adjustment? You want me to answer very honestly? Honestly, we want to know. असल में यहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानी जो सब है ना वो बहुत डिसिप्लिन है और दैट इज़ द वेरी वाइटल. जैसे वहाँ प्रोज एंड कॉन्स बहुत हैं तो मुझे सिर्फ ये होता है कि कल्चर डिफरेंस तो ये है कि ऐसा है कि पाकिस्तान में रहते हुए लोगों को ऐसा लगता है कि दे वांट टू बी मोर मॉडर्न, कि वो कहीं किसी रेस में ज़िंदगी की पीछे ना रह जाएं. तो वो एक मुझे थोड़ा सा ड्रॉबैक लगता है. अपनी रूट्स के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ओवरसीज जो हैं वो ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं. उनको ये डर होता है कि कहीं हम ना कहीं दूर रह जाए पाकिस्तान. इज़ दैट द केस राइट? तो ये मैं काफ़ी नोट करती हूँ. You've had a long, successful career so far. I'm sure you had moments of hardship and struggle that we don't see. What have you learned about yourself through these lessons, through the years that you've been working? I feel कि कोई भी ज़िंदगी का कहीं किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए अगर आप हार्डशिप्स ना देखें तो वो उतनी वर्थ इट ही नहीं होती हैं. तो मैंने अपनी सेल्फ में आई फील कि मेरी पेशेंस बहुत ज़्यादा आया है मेरी पर्सनालिटी में. और सब्र जो है वो एक की पॉइंट है एक इंसान को एक अच्छा बेहतर इंसान बनाने के लिए. इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी सब्र का वर्ड बहुत यूज़ किया है कि सब्र करें, सब्र के साथ मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ. सो आई फील सो गुड कि पेशेंस जो है बाय विद द टाइम जो है वो काफ़ी मैंने गेन किया है इन माई पर्सनैलिटी. We are here in a village in Samgar area of Sindh province. With me is this elderly woman whose name is Mariam Bibi, and she received this solid flood-resistant home on behalf of Muslim Aid. Toilets are such an important need of the community over here, and we are so glad that on behalf of Muslim Aid we are able to assist them and provide them these homes and also build toilets with the homes, especially for our esteemed sisters. In the Sindh district, your donations built 650 flood-resistant homes. Each home cost $6,000 and provided families not just with shelter, but with dignity, security, and a foundation for the future. But shelter was only the beginning. You invested in long-term sustainable solutions that empower entire communities. Your contributions built solar-powered water wells. Women from very far off places come over here to get the drinking water. Again, water is such a huge scarcity in this entire area. We were able to dig and build this water tank. This is your donations, your contributions in action, providing clean drinking water to 1,200 people who live in this village. Each well costs $3,000 and supplies clean, life-saving water to over 1,500 people. For many women, this means they no longer have to walk 6 to 7 hours a day to collect just 3 pots of water. Now, they have access to fresh water near their homes, for their children, for their cattle, and for their crops. This clean water has transformed daily life, improved health, boosted agriculture, and restored time and energy to entire communities. Muslim Aid USA is also committed to education. That's why your generosity built 4 schools across Pakistan. 2 of these schools, located in Kashmir, have provided orphans the opportunity to learn and grow in a safe and nurturing environment. The closest government school is 7 kilometers away from here. These are very bright children who wants to get educated but they do not have means. They do not have electricity over here. These efforts reflect our long-term commitment to meaningful, lasting change. This building that you see behind me is where 500 students are getting educated, out of which 84 students are orphans. देसी उर्दू टीवी की रिपोर्ट से फिलवक्त ताही. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan.
As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.